सो गैशियस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, रैंडम मोशन। और प्रेशर एक्सर्ट कैसे होता है? बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, सबसे पहले व्हाट विल हैपन? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल इंक्रीज। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस, देयर वेलोसिटी और स्पीड इंक्रीजेस, and when their velocity and speeds increases, can we say that their number of collisions have also increased? And when their number of collisions have increased, अब वही collisions अगर आप सोचो वो walls of the container के साथ बार बार collide करें, और वो walls of container के ऊपर एक force भी apply हो रही हो per unit area, isn't that known as pressure? आप physics में जो pressure पढ़ते हो, what is pressure? Pressure is force per unit area। एक area के ऊपर एक force पड़ रही है। यही फोर्स आप सोचो, एक कंटेनर है, उसकी वॉल्स के ऊपर हो रही है, राइट? एक कंटेनर है, उसकी वॉल्स पे फोर्स पड़ रही है। ये कंटेनर भी तो एक एरिया है ना, ये एक एरिया है वॉल का, ये भी एक एरिया है। तो दिस इज हाउ प्रेशर इज एक्सर्टेड। दिस इज हाउ एक्सपेंशन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एज वेल व्हेन वी स्टार्ट टू हीट समथिंग एज वेल। सो एक बात तो क्लियर हो गई इस पूरी थ्योरी से, दैट देयरफॉर एन इंक्रीज इन टेम्परेचर causes an increase in pressure. I mentioned yesterday as well that this question is oftenly asked for 5 marks. This question is asked for 5 marks. और आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है? As temperature increases, the kinetic energy gained by the particles also starts to increase, which in turn increases the speed of the particles, and they start moving more haphazardly and constantly in a random motion, which increases the number of collisions between the particles and the walls of the container, which increases the pressure exerted as well. ये है वो पूरी 5 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन। आपने पांच की पांच चीजें इसमें मेंशन कर देनी है। लुक एट दिस, राइट? मैंने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, पहले तो ये वाइब्रेट होने लग गए। वाइब्रेट होके दिस स्टार्टेड टू मूव हैपहैज़र्डली, erratically। कोई यहाँ पे आके कोलाइड कर रहा है, कोई यहाँ पे कोलाइड कर रहा है। तो ओवरऑल कंटेनर सोचो, अगर ये मेटल का ना होता, व्हाट इफ इट्स अ पैकेट ऑफ लेज चिप्स, व्हाट इफ इट्स अ पैकेट ऑफ चिप्स, ठीक है? उसके अंदर अगर गैस है और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ, वो तो प्लास्टिक का है, वो तो एक रैपर है ना, वो तो एक्सपैंड कर जाएगा, वो तो फूल भी जाएगा। बल्कि यहां से उसके कंटेनर की वॉल्स तो एक्सपैंड भी कर सकती है, राइट? कंटेनर इज नॉट जस्ट अ मेटल कंटेनर, कंटेनर इज अ इंक्लोज्ड स्पेस। कोई भी इंक्लोज स्पेस जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे और उसके अंदर गैस पार्टिकल्स होंगे, दे विल स्टार्ट टू इंक्रीज इन साइज। So now we are going to talk about heating curve. Anybody who has any queries or any problems till now, समझ आ गई है? The new students as well, open up your mic, kindly let me know. Is everything clear about gaseous particles and how pressure is exerted? Answer me. Hassan? Javeria, Anas, Mirav, Maruk, I hope most of you were there in yesterday's class as well. I can see Javeria is a new student and yes, Hassan. Okay. Yesterday किसने सवाल ही पूछा था that are we going to start heating curve? Can someone tell me what is the heating curve? The same person or the student किसने पूछा था कल? Can someone raise their hand and would like to explain? Yes, come on. Meerab, can you explain me what do you think we are going to cover in a heating curve? क्या है इसमें? Sir, it's a solid which is being heated to convert into liquid and then into gas. All Exactly. the phenomena that takes place in the form of diagram is the heating curve. Exactly. The conversions of a solid to liquid to a gas. कितने टेम्परेचर पे हो रहे हैं? दे आर ऑल रिप्रेजेंटेड बाय अ हीटिंग कर्व। बिफोर हीटिंग कर्व, आई वुड लाइक यू ऑल टू टॉक अबाउट another very important phenomena which is Brownian motion. Brownian motion, एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है? Brownian motion is defined as the random movement of particles in a liquid or a gas produced by large number of collisions with smaller, often invisible particles. The observation of Brownian motion proves the correctness of the kinetic particle theory. अब ब्राउनियन मोशन क्या था? आप एक ग्लास ऑफ वाटर लो, और रॉबर्ट ब्राउन ने भी कुछ ऐसे ही काम किए थे। दो कारनामे अंजाम दिए उसने। कैसे? पहले उसने एक सरफेस देखी वाटर की, उस पे उसने कुछ पॉलन ग्रेन्स छिड़क दिए। ये देखो, ही जस्ट स्प्रिंकल्ड सम pollen grains. Now can someone tell me, can you see, can our naked eyes see the water molecules? Can anyone see water molecules in real life?
यस, the answer would be no. Obviously, we can't see the water molecules, but can we see the pollen grain particles? Yes, we can. Pollen grain particles तो मैंने ही स्प्रिंकल किए ना ऊपर, मुझे तो वो नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने स्प्रिंकल किया वो तैरने लग गए, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ये क्या हो रहा है? दिस इज अ haphazard मोशन, राइट? व्हाट इज दिस हैपनिंग? और ये डायग्राम आती है to explain Brownian motion. This is known as a haphazard movement, and this is the exact term that the examiner of O levels and iGCSE uses as well. And haphazard random movement. ये pollen grains खुद से इधर उधर क्यों randomly तैर रही हैं? मैंने तो इनको नहीं कहा था तैरने को, मैंने इनको सिर्फ स्प्रिंकल किया था ना। Why are they moving randomly? ये क्यों इधर उधर फ्लोट हो रही है पानी के अंदर? अगर आप कोई भी पाउडर डालते हो पानी, वो बिल्कुल सीधा नीचे क्यों नहीं जाता, ऐਵੇਂ ही फैलता हुआ क्यों जाता है इधर उधर? क्योंकि they are being bombarded, they are being pushed, they are colliding with the invisible water molecules which you and I cannot see. हम में से कोई पानी के गिलास को देखे तो हमें अंदर से पानी नजर आ रहा है। उस पानी, वो पानी वाटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। क्या हमें वाटर मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं कि यार ये है एक वाटर मॉलिक्यूल, ये H2O, ये है H2O के मॉलिक्यूल्स? हमें मॉलिक्यूल्स नहीं नजर आ रहे। बट पोलन ग्रेन्स हमें ये प्रूव कर रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स प्रूव्स कि कोई ना कोई है, कोई इनविजिबल चीज है जो इनको धक्का दिए जा रहा है। आप एक लाइन में सीधा चल रहे हो, एन इनविजिबल मैन कम्स एंड पुशेस यू, ठीक है, आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाओगे। अब मुझे वो इनविजिबल मैन नजर नहीं आ रहा, आई कांट सी द पर्सन हु इज एक्चुअली इनविजिबल। तो ब्राउनियन मोशन में ये प्रूव किया द काइनेटिक थ्योरी दैट गैशियस पार्टिकल्स हो या एनी टाइप ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स हो। फ्लूइड्स की जब हम बात करते हैं, आई मेंशन यस्टरडे कि जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स में लिक्विड्स भी आते हैं, फ्लूइड्स में गैस भी आते हैं। फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड पार्टिकल्स भी है और गैस पार्टिकल्स भी है। दे विल ऑलवेज मूव इन अ रैंडम मोशन बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग बम्बार्डेड बाय द इनविजिबल मॉलिक्यूल्स। एंड अदर एग्जांपल, आप लेट्स से कोई स्मोक है, ठीक है, दिस इज अ सिगरेट, और यहाँ पे इसकी स्मोक जो होती है वो एक लाइन में क्यों नहीं जा रही है ऐसे करके? क्यों नहीं जा रही? ऐसे फैलती हुई क्यों जाती है? ये कुछ इधर जा रही है, फैल रही है ना। कोई भी धुआं है, आपने एक माचिस जलाई, उसको फूका, वो धुआं स्प्रेड क्यों हो गया? मैंने तो नहीं उसको स्प्रेड किया था, मैंने तो माचिस नहीं हवा में हिलाई। धुआं स्प्रेड क्यों हो रहा है? वो रैंडमली मूव क्यों हो रहा है? बिकॉज smoke particles is something that I can see, dust particles is something I can see, but can you and I see the air particles? अभी आप जिस रूम में बैठे हो, आपको अपने इर्द गिर्द हवा नजर आ रही है? कैन एनीवन सी दोज एयर मॉलिक्यूल्स? यू कांट सी दोज एयर मॉलिक्यूल्स, बट यस यू कैन सी द स्मोक पार्टिकल्स। अगर यहाँ पे आपके पास कोई स्मोक वाली कोई सोर्स होगी, आपको वो स्मोक नजर आएगी, और वो स्मोक हैपहैज़र्डली हर डायरेक्शन में क्यों मूव कर रही है? बिकॉज दो स्मोक पार्टिकल्स विल बी bombarded, are being constantly bombarded, are being constantly collided or pushed by the invisible air molecules. This is what causes the randomness nature in many of the gaseous sources. अब आप देख सकते हो, these are the large particles that you and I can see. Now we can't see these small moving particles. Basically, अगर ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, ये क्यों जा रहा है? क्योंकि ये जो तीन पार्टिकल्स होंगे, शायद इन तीनों ने इसको आके मारा था इधर से। दिस इज व्हाट Brownian motion explained, that the large particles show jerky and erratic movement caused by many collisions with the smaller particles that you and I cannot see. यही चीज डिफ्यूजन में भी हो रही है। अगर कोई बंदा बात कर रहा है that why is this randomness occurring, why does gas behave very randomly, या इसका मोशन haphazard क्यों है, एक सीध में क्यों नहीं है, ये इधर उधर फैलता फैलता क्यों जा रहा है, स्प्रेडिंग बिहेवियर क्यों, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन भी इसी बात पे है। आप एक कमरे के कोने में परफ्यूम करते हो, ठीक है, आपने यहाँ पे परफ्यूम लगाया, जो बंदा इधर खड़ा है, कोई एक मिनट बाद उसको भी वहां तक उसकी खुशबू चली जाएगी। वाई इज दैट? क्योंकि गैस की नेचर है स्प्रेड होना। यहाँ पे गैशियस पार्टिकल्स विन हायर इन देवर इन हायर कॉन्सेंट्रेशन। जब आपने परफ्यूम लगाया, आपके इस वाले रूम के एरिया में परफ्यूम पार्टिकल्स की एक हायर कॉन्सेंट्रेशन थी, और इस वाले कोने में जहां आप दूर खड़े थे वहां पे एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन थी। डिफ्यूजन को तो डिफाइन ही ऐसे करते हैं, वन ऑफ यू डिफाइंड एज वेल, मीरब ने भी बहुत अच्छा डिफाइन किया था, दैट डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये नेचर है। This is the nature of gas particles, and once you know about the nature of the gas particles, the randomness, the theory behind this randomness, और वो theory behind randomness हमने देख ली है। कोई भी परफ्यूम की खुशबू फैलेगी नहीं जब तक उसको धक्का ना दिया जाए। कौन धक्के दे रहा है? द इनविजिबल एयर मॉलिक्यूल्स।
किसी परफ्यूम पार्टिकल को क्यों पढ़िए कि वो खुद से फैल जाए पूरे कमरे में, उसकी खुशबू क्यों फैल रही है? क्योंकि आपके रूम में एयर मॉलिक्यूल्स तो हैं। हम सब एयर मॉलिक्यूल्स इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमें नजर तो नहीं आ रही ना ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ने इस परफ्यूम वाले पार्टिकल्स को धक्का दिया है, और वो परफ्यूम पूरे रूम में आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड हो गया था। Eventually, what happens in diffusion is that the concentration of particles is even as they spread out to occupy all of the available space. Diffusion happens on its own and no energy input is required, although it occurs faster at higher temperatures. Would someone like to answer? ये वाला point क्या है? That diffusion occurs faster at high temperatures. Why is that so? And this is a very important 2 marks question as well. Would someone like to answer me this question, that why does diffusion क्या होती है? Movement of particles from higher concentration to lower concentration. Higher temperatures पे तेज क्यों हो रही है? Come on, who will answer me this? The new students, come on, man. I guess you know this now. Anas, Mirab, Numan, Hassan. Yes, Numan, would you like to answer? Anyone can answer in the chat box as well. Mirab, would you like to open up your mic and answer me? Why is diffusion happening faster at higher temperatures? What's the reason? So the reason for that is वही वाला जो पहले पढ़ा था। जो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, उनकी स्पीड बढ़ेगी, तो वही यही परफ्यूम की जो स्पीड है, जो पहले स्लो स्लो जा रहा था पूरे कमरे में फैलने के लिए, वो अब तेज जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया होगा कमरे का। राइट। आप और एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, बहुत एक आसान एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने चीनी मिक्स करनी है चाय में, अगर चाय ठंडी हो वर्सेस अगर चाय गर्म हो, कैन समवन आंसर मी? चीनी जब आप मिक्स करोगे उस चाय के कप में, किस में ज्यादा आसान होगा, ठंडी चाय में और इन अ हॉट कप ऑफ टी? कैन समवन आंसर मी दैट इन अ चैट बॉक्स? कम ऑन। वेयर वुड द शुगर बी इजी टू डिसॉल्व और मिक्स, इन अ हॉट कप ऑफ टी और इन अ कोल्ड कप ऑफ टी? एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर मी? कम ऑन, क्विक, जस्ट अ वन वर्ड आंसर। इन अ हॉट कप, एग्जैक्टली मीरा बेन अनस, गुड जॉब। इन अ हॉट कप। यही आप एग्जांपल ले लो डिफ्यूजन के साथ भी। हॉट कप में उन पार्टिकल्स को, वो जो शुगर के पार्टिकल्स थे, उनको एनर्जी इतनी मिली है वो इजीली डिसॉल्व कर गए। कोल्ड में उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा डिसॉल्व करना। नहीं आपको तो, अगर आप गर्म चाय में चीनी डालो कितना मिक्स करना पड़ता है, थोड़ा सा। अब आप एक और एग्जांपल लो, टैंग हम सबके घर में है, गर्मियां चल रही हैं, राइट? टैंग है, ऑरेंज पाउडर है, एनर्जाइजर, जो भी आप लोग यूज कर रहे हो, एनी काइंड ऑफ फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और जूस, आप जब पाउडर डालते हो टैंग का, वो पहले ऐसा दिखेगा कुछ। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट दैट वाज डन विद द क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम मैग्नेट, राइट? इनका कलर बहुत डार्क पर्पल होता है। इसको हमने वाटर में डाल दिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये देखो, वही क्रिस्टल्स फैलने लग गए। उनका कलर आप देखो कैसे पूरे वाटर में फैलने लग गया। व्हाई? क्योंकि ये वाला जो रीजन था, दिस वाज अ रीजन वेयर द पोटेशियम मैग्नेट वाज इन अ हायर कॉन्सेंट्रेशन, और ये वो पूरा रीजन था वेयर द पोटेशियम मैग्नेट वाज इन अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट? और डिफ्यूजन क्या होती है? एज वी हैव जस्ट डिस्कस, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम मैग्नेट हैं वो पार्टिकल्स जो पहले यहाँ पे सारे थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उस रीजन में फैल रहे हैं जहां पे वो नहीं थे, मूविंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे अभी भी हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और ये मूव सारे इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं जहां पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। थोड़ी और देर छोड़ दो, वेट अ बिट मोर, 1 घंटा और रुक जाओ आप, 1 घंटे बाद ये हो जाएगा, पूरा इक्विलिब्रियम आ गया कि नहीं आ गया? सबसे पहले ऐसा था, then it started to mix, it started to move from a region of a higher concentration to a lower concentration, और यहाँ पे आके डिफ्यूजन स्टॉप कर गई है। कैन समवन टेल मी दैट यहाँ इस पॉइंट पे आके डिफ्यूजन रुक क्यों गई है? why is it not happening anymore? Can someone tell me? मीरब, नुमान, हुबैब, anyone? Hassan, would you like to answer? Okay, I have a text. It's a homogeneous mixture. Now, exactly, amazing term used by you. It's a homogeneous mixture. Homogeneous mixture होता है जहां पे एक ओवरऑल इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है।
अब तो कोई रीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला नहीं है, कोई भी रीजन लो कॉन्सेंट्रेशन वाला नहीं है. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स नाउ इवनली स्प्रेड थ्रू द solution, and the potassium magnate solution after 4 hours equilibrium has finally been reached. Now let me show you a quick video regarding Brownian motion as well. वहां से आप लोगों को एक quick understanding होगी, and then one of you is going to explain me the whole phenomena जो अभी हमने Brownian motion का डिस्कस किया या डिफ्यूजन का है, क्योंकि they are all based on the simple phenomena जिसके अंदर हम बात करते हैं gaseous particles के randomness की, उनके behavior की, right? So Apply to study अभी a let plot me with the open the Duolingo clip. English test. ठीक है. This lesson, we're going to have a look at the idea of Brownian motion. This is useful because it helps indirectly to confirm that atoms exist. You're in a darkened room, the air is still, and the bright lights are streaming through the window. What do you notice about the dust particles? The black circles as they pass through the beam of light. Pause the video and think about this. Press play once you've made up your mind. The answer is that the dust particles are moving randomly. Did you see it? The dust particles are not always moving downwards, but are moving in all directions. The dust particles are very small and are supported by a fluid. In this case, that fluid is a gas. You are unable to see the gas particles directly because they are too small, but you can see the larger dust particles. The reason that the dust particles move randomly are because of the gas. We know that the gas is there because every time we move our hand through the air, we feel them against our hand. Try it now. Continue when ready. The particles in the air move in random directions quickly. This means they will have many collisions or will bump into the dust particles many times. Each collision between air particles, very small coloured circles, show how the dust particle, the black circle, moves off in a new random direction. It's a bit like a game of snooker, where there are millions of marbles which collide with larger, observable particles like a ping-pong ball. This effect was first observed by scientist Robert Brown. He was looking at pollen grains suspended in water under the microscope, and he wondered why they jiggled around. He thought that the pollen was alive. It was later that scientists realised the importance of his discovery. Now, here's a challenge for you. Thinking about what we know about dust particles, can you explain why the pollen grains appear to be jiggling randomly? Pause the video and continue when ready. In summary, the fluid is no longer a gas, but is a liquid, water. The pollen grain is colliding with many water molecules. Each water molecule is too small to see, but we can see the combined effect of their collisions on the pollen grain as it moves randomly. This effect is known as, you guessed it, Brownian motion. So is the video clear to everybody? Answer in the chat box so I can know. I hope the video was helpful in understanding the concept of Brownian motion. कि देखो अगर ये इनकी रैंडमनेस ना होती फ्लूइड्स में, तो अगर आप कोई भी चीज स्प्रिंकल करोगे पानी के ऊपर, आप कुछ सब छोड़ दो, ठीक है, आप एक टब लो पानी का, आप एक पानी का टब लो, उसके ऊपर आप कोई भी चीज फ्लोट करने के लिए रख दो, एक बॉल रख दो. व्हाट डू यू थिंक, क्या वो बॉल उधर ही रहेगा? आंसर मी, यस और नो. अगर आप एक टब ऑफ वाटर लेते हो, क्विकली आंसर में, ठीक है, एक टब ऑफ वाटर है, आपने उसके अंदर पानी भर दिया है, ठीक है, आप उसके ऊपर एक प्लास्टिक का बॉल फ्लोट होने के लिए रख देते हो, क्या वो अपनी जगह पे रहेगा या आप थोड़ी देर बाद आओगे वो हिला होगा? व्हाट डू यू थिंक? आंसर मी इन द चैट बॉक्स, ओपन अप योर माइक. क्लास पार्टिसिपेशन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल हैपन? विल इट स्टे इन प्लेस, यस और नो? इट विल मूव टू अनदर प्लेस, नुमान. एग्जैक्टली. क्यों? ये क्यों हो रहा है? अपनी जगह पे टिक के रहता है ना. क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको और मुझे नजर नहीं आए थे. मुझे क्या नजर आ रहा है? मेरा बॉल, जो मैंने बॉल रख के गया था मैं, वो बॉल थोड़ी देर बाद उधर क्यों हो गया? क्योंकि कोई ना कोई वाटर मॉलिक्यूल्स थे जो उसको बड़ी देर तक कॉन्स्टेंटली बम्बार्ड करते रहे, कोलाइड करते रहे उसके साथ, कि वो बॉल बेचारा कभी राइट हो रहा है, कभी लेफ्ट हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, वो अपने मजे से इधर उधर होए जा रहा है. दिस इज नोन एज द रैंडमनेस. एंड व्हेन सब्सटेंसेस आर हीटेड, हमने कल पढ़ा कि जब स्टेट चेंज होते हैं, सब्सटेंसेस हीट होती हैं, पार्टिकल्स एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी, और ये सारा दे वर ऑल बेस्ड ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एज वेल. किसी भी, अभी हम जब हीटिंग कर्व पढ़ेंगे उससे पहले यू शुड बी नोइंग अ क्विक समरी ऑफ ऑल ऑफ द स्टेट चेंजेस जो भी हमने डिस्कस किए थे. और अभी हमने जो ब्राउनिंग मोशन देखा, ठीक है, लेट मी शो यू अनदर थिंग दैट विल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन एज वेल. इट्स क्वाइट इजी, राइट?
इट वॉज ऑल्सो ब्राउनियन मोशन जो था दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन व्हाट द रैंडमनेस नेचर। और जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें, द रीजन फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वो तो डायरेक्शन है। हो क्यों रही है डिफ्यूजन, दैट इज अगेन बेस्ड ऑन रैंडमनेस। This will help you to understand how gases behave and also explain why smells spread. Before we start, you need to recall what solids, liquids and gases are like in terms of their particles. In particular, I'd like you to ask yourself, how are the particles arranged in a gas? Pause the video and restart it when you think you have the answer. The answer is the particles in a gas are spaced out and move about very quickly in random directions. Did you get it right? This, of course, explains why a gas takes the shape of its container. It's because the particles will each continue to travel in a straight line until they hit something, in this case the wall of the container. So, the smelly gases given off by rotting vegetables in a sealed box will fill the box with rotting vegetable smell, but you won't be able to smell them outside the box. However, take the lid off the box and those particles will no longer bounce off the lid and be contained. They will start to escape into the air around the box. You'll soon notice the effect and will be able to smell the rotting vegetables. And that's those gas particles reaching your nose by diffusion. Diffusion is the random movement of one gas through another, from a region of high concentration, in this case inside the box, to a region of low concentration, in this case outside the box. It is a process that doesn't rely on wind or air currents. It will happen even if you are inside a building and the air is completely still. Now, there are many examples of diffusion, but smell is probably the most obvious one. These could be food smells, body smells from other people, the scent that a plant gives off to attract pollinating insects. And the same even applies with the smoke from a candle after it has been extinguished. It spreads out, and it's all due to diffusion. Now here's a challenge for you. If someone walks into a room with some fresh flowers, why does it take a while for the smell of the flowers to fill the room? Why can't you smell them straight away? Pause the video, have a think, and restart it when you think you have the answer. Well, just as the gas particles can hit the walls of a container and rebound, the particles can also hit each other. It doesn't matter if there is only a single gas or a mixture of gases. These collisions between particles are always taking place. It's very similar to trying to walk in a straight line through a busy crowd of people or a marketplace. It's very difficult to do without bumping shoulders with someone and changing direction. This explains why it takes a while for a smell to get from one part of a room to another. The high concentration of gas or smell particles takes time to spread out due to the collisions with the other gas particles in the air. So that same collisions और जो ब्राउनियन मोशन, रॉबर्ट ब्राउन, a very famous scientist जिसने ये पूरा एक्सप्लेन किया था, उसी की बेसिस पे डिफ्यूजन इज आल्सो टेकिंग प्लेस। अगर पार्टिकल्स एक जगह पे जमा थे, उन्होंने ऑब्वियसली इवेंचुअली कभी ना कभी दूसरी जगह तक मूव कर ही जाना था जहां तक उनकी प्रेजेंस नहीं थी। टकराते टकराते एयर पार्टिकल से बम्बार्ड होते होते दे वुड हैव डिफ्यूज्ड एज वेल। तो coming back to the states of matter and moving on to the heating curve, when substances are heated, particles absorb thermal energy. कोई भी चीज जब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस जा रही है, टेम्परेचर बढ़, एनर्जी absorb हो रही है। कोई भी चीज अगर गैस टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है या फिर एनर्जी लॉस हो रही है। इट्स ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। Heating a solid would cause its particle to vibrate more, and as the temperature increases, they vibrate so much that the solid expands. आप किसी भी चीज को मेल्ट कैसे करते हो? एक सॉलिड को हीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसके पार्टिकल्स इतना वाइब्रेट करें दैट दे फाइनली ओवरकम देयर फोर्सेस बिटवीन देम, वो ब्रेक हो जाएं एंड दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। और मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर मीन दैट वो मेल्ट हो चुके हैं इन अ लिक्विड फॉर्म विच वाज वंस अ सॉलिड।
ऑन फर्दर हीटिंग यही लिक्विड मजीद एक्सपैंड हो जाएगा, ये मजीद वाइब्रेट करेगा, इनकी अपनी जो थोड़ी बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो थोड़ी बहुत बच भी गई थी वो भी खत्म हो जाएंगी, और जब बिल्कुल खत्म हो जाएंगी ये सारे गैस में बदल जाएंगे। दिस इज हाउ एवपोरेशन वुड टेक प्लेस। बॉइलिंग पॉइंट और ये जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं ना, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, याद रखें जब भी कोई स्टेट चेंज हो रहा है, जिस वक्त मेल्टिंग हो रही है टेम्परेचर उस वक्त कभी नहीं बदलेगा। क्या क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पानी बॉयल होने रखा, आपने हीट देना शुरू की, ये आपका पानी पड़ा हुआ है पॉट में, आपका टेम्परेचर इस वक्त रूम का कितना है? 25 है। इंक्रीज किया आपने, हीट दिया, पॉट को 40 कर दिया, टेम्परेचर 70 हो गया, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 90 हो गया है, टेम्परेचर 95 हो गया है। जैसे ही टेम्परेचर 100 हो जाएगा, जब तक ये सारा पानी बॉयल नहीं हो जाता, क्योंकि इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या था? 100। जब तक ये पानी पूरा का पूरा बॉयल नहीं हो जाता, टेम्परेचर 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं, इट विल रिमेन कांस्टेंट। ये नहीं कि जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट रीच हुआ, बॉइलिंग के दौरान ये टेम्परेचर और बढ़ेगा, 101, 102, 103, पानी तो देखची तो खत्म हो जाए भाई। जब स्टेट चेंज शुरू हो गया ना, जब लिक्विड गैस में इवेपोरेट होना शुरू हो चुके, जब तक पूरा नहीं हो जाता टेम्परेचर 100 ही रहेगा, टेम्परेचर 100 से थोड़ा सा भी ऊपर नहीं जाएगा। इसी का रिवर्स कूलिंग कर्व भी आपको बताएगा, बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द हीटिंग कर्व ओवर हियर। अगर आप देखो, लेट्स से ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड को अगर आपने मेल्ट करना है, अभी इस वक्त लेट्स से सॉलिड है -5 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करो, -4 किया, -3 किया, जैसे ही टेम्परेचर 0 हो गया, अब 0 डिग्रीज इज व्हाट? 0 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसे जैसे मेल्टिंग हो रही है, जब तक ये पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, टेम्परेचर 0 से ऊपर नहीं बढ़ेगा। जैसे ही सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, हाँ, अब टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज करना शुरू होगा, 1, 10, यहाँ पे जाके कोई 40 हो जाएगा, फिर 70, 80, 90 करते जाओ, और टेम्परेचर बढ़ाओ 100। अच्छा, 100 बॉइलिंग पॉइंट हो गया, 100 आ गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड जो था, अब इस पूरे एरिया में यहां से लेके यहां तक लिक्विड ही रहा स्टेट। जैसे ही टेम्परेचर 100 रीच हुआ, व्हाट हैज हैपेंड? दिस लिक्विड इज गोइंग टू स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैस। एंड बिलीव मी, जब तक ये सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, टेम्परेचर 100 ही रहेगा, टेम्परेचर वुड रिमेन 100। ये नहीं कि यहाँ पे आगे कोई 101, 110, नहीं, टेम्परेचर 100 ही रहेगा। जब सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब आप उस गैस को हीट करो, बेशक 110 तक करो, 120 तक करो, नो बडी केयर्स दैट। ये याद रखें, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट ड्यूरिंग अ स्टेट चेंज देयर इज नो टेम्परेचर चेंज। आपके सामने अगर वाटर मेल्ट हो रहा है, अगर आपके सामने एक आइस मेल्ट हो रही है, टेम्परेचर 0 ही है उसका, ठीक है, टेम्परेचर 0 ही रहेगा जब तक वो सारा का सारा मेल्ट नहीं हो जाता। जब तक पानी पूरा का पूरा बॉईल नहीं हो जाता, वो 100 ही रहेगा। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम अ हीटिंग कर्व। इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? Mirab, Numan, Hazan, would anyone like to ask any questions? Anything, come on. आगे हमारे पास we have the same repeated explanation. An example of Brownian motion was the observed jerky and erratic motion of small particles as they are hit by the unseen molecules in the air, which can be seen under a microscope. In 1905, physicist Albert Einstein explained that pollen grains in water were being moved by individual water molecules. In all cases, larger and visible particles are caused to move by the random bombardment of smaller invisible particles. In सब cases में जो large visible particles थे ना, they are caused to move by the random bombardment of smaller invisible particles, जो हमने already discuss कर लिए. What is motion? Diffusion occurs much faster in gases than in solids. Would someone like to answer me this? Why? डिफ्यूजन गैसेस में ज्यादा तेज क्यों हो रही है लिक्विड से ज्यादा? लिक्विड स्लो डिफ्यूज करते हैं, गैसेस ज्यादा डिफ्यूज करते हैं तेजी से। एनीवन? आंसर इन द चैट बॉक्स। नुमान, मीरब। लो मोलिकुलर मास, लो मोलिकुलर मास तो लिक्विड्स का भी हो सकता है। फर्क है उनके पार्टिकल काइनेटिक पार्टिकुलेट थ्योरी में, उनके अरेंजमेंट में, उनके पार्टिकल्स के बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उनके डिस्टेंसेस में। गैसेस ऑलरेडी फैली हुई हैं, ठीक है, लिक्विड्स तो कम फैले हुए थे, राइट? ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो है, लेस डेंसिटी कह सकते हैं, ठीक है, आप दोनों के जो पॉइंट्स है, लेस डेंसिटी इज, ठीक है, एक डिफरेंस है।
But the more a better way to describe would be in terms of kinetic particle theory कि उनके particles are already randomly arranged, they have larger distances, lesser or weaker intermolecular force जो कि easily spread out हो सकते हैं. Then yes comes the point कि there's a difference in the relative molecular masses and densities as well. More the relative molecular mass, more the density of the liquid, so slower the diffusion than as compared to gases. अब ये एक बहुत मशहूर क्वेश्चन है, अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, आई स्टार्ट दिस एज वेल, और ये बहुत दफा एमसीक्यूज में आ चुके हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा देख के, ये मैंने इधर स्लाइड में जरूर डाला है. आई होप किसी ने अभी तक किसी वर्कशीट में शायद देखा हो ये. यहाँ पे एक गैस है और यहाँ पे एक गैस है. एक का मोलिकुलर मास 17 है और दूसरे का मोलिकुलर मास क्या है, 36.5. इनमें से स्लो कौन मूव करेगा? HCl. HCl स्लो मूव करेगी, बट NH3 जरा फास्टर डिफ्यूज करेगी, विच मीन्स कि उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो समवेयर समवेयर क्लोजर टू किसके बनेगा, HCl, क्योंकि HCl वाला भारी था. आप समझो ना, एक बहुत भारी, ठीक है, एक चीज आ रही है और एक बहुत हल्की चीज आ रही है, मीट वो यहाँ पे करेंगे, मिडल में मीट नहीं हो सकती क्योंकि HCl उस स्पीड से नहीं आ सकता जिस स्पीड से NH3 आया है. तो उनका जो प्रोडक्ट है ना कहीं क्लोजर टू HCl बन रहा है. इज इट क्लियर? आंसर मी इन द चैट बॉक्स विद यस, ताकि ये एमसीक्यू आपका क्लियर हो जाए. दिस इज अ वेरी रिपीटेड एमसीक्यूज, 5 से 6 दफा ओ लेवल्स और आईजीसीएसई दोनों में आ चुका है. एंड दिस इज लाइक द एमसीक्यू नंबर 4 और 5. इज एवरीथिंग क्लियर? Good job. All right. Hassan has a yes. Numan has a yes. And Mirav has a yes. Good job, students. Good job. And that is all for this chapter. This is the end of your chapter of particulate nature of matter and the states of matter. 30 slides हैं. मैंने कल ही मेंशन किया तो नो नीड टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ नोट्स इन माई क्लास. ये मैं आपको ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा. जिसने कल का लेक्चर मिस किया था उसको रिकॉर्डिंग भी आज रात तक प्रोवाइड हो जाएगी. आई अपोलोजाइज अगर मैं थोड़ा लेट अपलोड कर दूं, आई हैव अदर क्लासेस एज वेल, तो मैं थोड़ा सा लेट नाइट फ्री होऊंगा, बट आई प्रॉमिस मैं दोनों लेक्चर्स अपलोड जरूर कर दूंगा इन द ग्रुप. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर आवर टुडेज क्लास.